Good morning, everyone. So today we'll be discussing some more terms of accounting. So let's start with the first term that we are going to discuss today. And the first term that we'll be discussing is assets. So assets means any property that a business purchases or the business brings in possession for the purpose of starting its business or and for the purpose of running it for a longer period of time. It means any property that has been purchased is purchased for a purpose of deriving benefit. Now, that benefit can be derived in a longer period of time. That asset from which we expect to derive the benefit in the years to come is called our fixed asset, and the asset which we are purchasing for the purpose that we can sell it within the period of 1 year and convert it into cash is called current asset, right? So whether it is a current asset or a fixed asset, all the assets are purchased or procured for the purpose of deriving benefits, right? तो ये assets हैं. अब assets की कुछ types होते हैं, कुछ classification होते हैं. First होता है आपका fixed asset जिसको हम कहते हैं non current asset भी, right? So fixed assets का मतलब क्या होता है? Fixed assets are those assets which are purchased so that we can utilize it for the purpose of producing our goods. That means जिस चीज में organization deal कर रही है उसको produce करने के लिए जिस भी तरह के assets की उसको जरूरत पड़ेगी वो उसको करने के लिए, उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिसे परचेज करती है उसे हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं. जैसे हम कहेंगे मशीनरी या फिर आपकी बिल्डिंग परचेज की जाती है ऑपरेशंस को रन करने के लिए. आपका जो स्टाफ है, आपके एम्प्लॉइज हैं, वो जहाँ पे फंक्शन करेंगे उस एरिया, उस प्रेमाइसेस को हम बिल्डिंग कहते हैं. दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड लाइक अ फिक्स्ड एसेट. So anything which a business is purchasing with not an intention to sell it the next year is called fixed asset. और वो सारे assets जो purchase किए जा रहे हैं for the purpose of running the operations of the business is also deriving the same meaning, and so it is called fixed asset. कुछ examples मैंने लिए हैं यहाँ पे fixed asset में. Fixed assets is classified into two parts, tangible and intangible, which you can see. So tangible assets are those assets which has got a physical existence. It's a land and building, plant and machinery, furniture, right? These all assets have physical existence, and that is why they are called tangible fixed assets. Intangible fixed assets कौन से होते हैं? Intangible fixed assets वो होते हैं जिनकी कोई भी physical existence नहीं होती, right? But they still hold the value in the balance sheet of the organization. तो वो सारे assets हमारे कहलाते हैं intangible fixed assets. Some of these are goodwill, patent, trademark and copyright. मैंने कल भी आपको explain किया था इनका meaning, मैं आपको एक बार फिर से explain कर दे रही हूँ. So goodwill means the reputation which the business has in the market. That means among the people or among the interested parties, whatever reputation that any business is holding in the eyes of those people is called the goodwill of the organization. So goodwill is always assessed based on the profit that the organization has earned in the past years, right? तो ऐसे हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं. सेकंड है हमारे पास पेटेंट. पेटेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट की है, मतलब कोई नया इनोवेशन किया है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है आपने जो क्रिएट की है उसको आप अपने नाम से, बिकॉज यू आर द क्रिएटर, यू आर द ओरिजिनेटर, तो आप उसको अपने नाम से पेटेंट करवाएंगे. So now, whichever other company is planning to use the same technology is going to purchase the rights from your organization. So that is called patent, right? Next one is trademark. Trademark मैंने बताया था, trademark represent any symbol or any mark which is going to represent an organization and the products being sold by those organizations, right? Example में हम ले लेते हैं. So if we see Apple, एप्पल का एक आपका एप्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट द आईफोन कंपनी. तो एप्पल का अपना एक ट्रेडमार्क है और वो आपने देखा है कि एप्पल का साइन है जिसमें एक छोटा सा बाइट का कट है, राइट? तो ये उसका ट्रेडमार्क हुआ. अब कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रेडमार्क को यूज करके प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, और अगर वो बनाएगी तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये भी एप्पल कंपनी को ही बिलोंग करता है. तो बेसिकली एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एफिलिएटेड विद एप्पल कैन नॉट यूज दैट ट्रेडमार्क साइन, because if they are using it, they are doing it illegally, right? So that is the trademark meaning. Next one is copyright. Copyright is generally used in context to the writing material or music or drawing, right?
तो कोई भी आर्टिस्टिक मटेरियल के लिए या रिटन मटेरियल के लिए कॉपीराइट को यूज किया जाता है. सो कॉपीराइट इज बेसिकली द originator of any article actually takes the right of ownership over that material that has been created, right? तो अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बुक लिखी है और मैंने उस बुक का कॉपीराइट करवा लिया, that means now this copyright shows that the ownership of that material it belongs to me, right? तो अगर कोई भी उस मटेरियल को अगर कहीं भी यूज करेगा या कोई भी उसे रेप्लिकेट करेगा तो उसको सोर्स उसका रेफरेंस मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज इट इज स्टेटेड ट्रीटेड एज चीटिंग, राइट? दैट मीन्स आप कॉपी कर रहे हैं, आप प्लेजराइज कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज इलीगल और इसके लिए पनिशमेंट और जेल भी होती है, राइट? तो इसीलिए माना जाता है दैट इफ यू आर getting or writing anything which is original in nature, please get it copyrighted so that if anybody else is using it, he or she would be required to take the copyrights from you, and only then they can use it by payment of certain fees. Without it, it is not possible, right? और ये सब चीजें आपकी जो भी इंटेंजिबल आपके एसेट्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे वो पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो या कॉपीराइट हो, उनको यूज करने के लिए, राइट्स उनके लेने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है. एंड दीज आर ऑल बीइंग परफॉर्म्ड बाय और गिवन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है और पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट को रजिस्टर करवाना पड़ता है, बिकॉज दीज आर ऑल द राइट्स, द लीगल राइट्स व्हिच यू आर पोजेसिंग, राइट? तो ये सब चीजें आपके पास इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं, जो भी इसकी वैल्यू है उसके हिसाब से, राइट? तो ये मेरा रहा इंटेंजिबल और टेंजिबल. ये दोनों ही कैटेगरी, चाहे वो इंटेंजिबल थी या टेंजिबल थी, दोनों ही फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही आती है. मतलब नाइदर ऑफ दीज are being purchased or being procured for the purpose of sale within the period of 1 year. That means अगर आप सेल कर भी देते हैं तो भी हम उसे फिक्स्ड एसेट ही मानेंगे, क्योंकि इंटेंशन हमारा खरीदने का, जो हमने जब खरीदा था तब ये नहीं था कि हम उसे बेच देंगे 1 साल के अंदर, राइट? तो वी आर टॉकिंग अबाउट और वी आर फोकसिंग ऑन द इंटेंशन एंड नॉट द एक्चुअल रियलिटी. तो एक्चुअल रियलिटी में अगर आप उसे बेच भी देते हैं अगले साल अपने एसेट को बिकॉज ऑफ द obsolescence, because it has got obsolete, या फिर आपको लगता है कि कुछ और बेहतर आपको परचेज करना है, and you have not purchased the right asset for your organization, तो उस वजह से अगर आप उसे सेल भी करते हैं तो भी उस कैटेगरी के अंदर भी आपका ये एसेट फिक्स एसेट की ही कैटेगरी में रहेगा, करंट एसेट में नहीं काउंट किया जाएगा, राइट? आगे चलते हैं. आगे है हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज करंट एसेट. सो फिक्स एसेट वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज करंट एसेट. तो करंट एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एसेट जिसको कि प्रोक्योर किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू कैश विद इन अ टाइम पीरियड व्हिच इज लेस देन 1 ईयर, राइट? तो करंट एसेट को लेस देन एन ईयर में आप कैश में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. एग्जांपल्स आपको पता चलने चाहिए क्या है इनका मतलब इंडिविजुअली. तो फर्स्ट इज स्टॉक. तो स्टॉक मींस वो प्रोडक्ट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, वो जो उसके पास स्टॉक अभी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्कर, तो ये मार्कर में अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है तो ये मार्केट उसके लिए उसका स्टॉक कहलाएगा, जिसको उसने परचेज किया है या बनाया है. और अब बनाया क्यों है? बेचने के लिए, right? So this is called the stock of goods, right? That means goods here means the product which we are purchasing or we are manufacturing for the purpose of reselling it or for the purpose of selling it, right? Reselling हम बात करते हैं जब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की. जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से इंडिया से दुबई जाती हूँ और दुबई से शूज लेकर आती हूँ और शूज को वहां पर यहाँ पर अपने इंडिया लाकर रीपैकेज करती हूँ और बेच देती हूँ, राइट? तो मैंने क्या किया? मैंने ट्रेडिंग की, जहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं की है, बस मैंने एक जगह से प्रोक्योर किया और दूसरी जगह बेच दिया, राइट? सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेल्स होती है उसको हम कहते हैं रीसेलिंग, राइट? द पर्पस इज अगेन रिमेनिंग द सेम टू अर्न द प्रॉफिट. तो जो भी शूज का स्टॉक आप मेंटेन कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग दोज गुड्स, तो वो जो शूज है उसको हम गुड्स कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. जो उसका प्रोडक्ट है उसको गुड्स कहा जाता है, राइट? सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ प्रोडक्ट को, तो जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मान लेते हैं हम ये मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अगर मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ तो मैंने रॉ मटेरियल कलेक्ट किया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स बनाए, और ये फिनिश गुड्स में मेरा ये प्रोडक्ट है. तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे लिए कहलाएंगे गुड्स, राइट? अकाउंट्स में हम इन्हें गुड्स कहते हैं.
So whenever that I'm going to hold the stock of these goods, it is called stock or inventory. और स्टॉक हमेशा फिजिकल प्रोडक्ट का होता है. फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब है हर वो चीज जिसकी एक टैंजिबिलिटी होती है, आप सिर्फ उसे ही स्टॉक कर सकते हैं. इमेजिन कीजिए, जैसे मैं बात करती हूँ अभी इस मार्कर की, तो ये मार्कर मैंने 100 यूनिट्स बनाए, अपने गोडाउन में रख लिए, ये स्टॉक किया जा सकता है, राइट, क्योंकि एक टैंजिबल प्रोडक्ट है. इमेजिन कीजिए कि मैं बात कर रही हूँ कि डॉक्टर के सर्विसेज की, क्या वो स्टोर किया जा सकता है, राइट, कि आप सर्विसेज लीजिए, बना बना के रख लीजिए और उसे स्टोर कर लीजिए. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो सर्विसेज कैन नेवर बी स्टोर्ड. तो सर्विसेज के केस में इट इज ऑलवेज इन्वेंट्री लेस. दैट मीन्स उनको स्टॉक नहीं किया जा सकता. सो इट इज ओनली गुड्स which has got a stock and it can be stored. Okay. Next one is cash. Cash means we are referring to cash in hand. The next one is bank. We are referring to the bank balance that any organization is holding in a bank through a bank account. Right? तो ये चाहे आपका किसी भी नेचर का बैंक अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो या करंट बैंक अकाउंट हो या एफडी हो, कुछ भी नेचर का बैंक अकाउंट हो, बट बैंक अकाउंट आपके लिए हमेशा आपका एसेट ही रहेगा. राइट. नेक्स्ट वन इज डेटर. तो डेटर मतलब कस्टमर, वो कस्टमर जिसको मैंने क्रेडिट में सामान बेचा था, जिससे मुझे पैसे मिलने अभी बाकी है. तो दैट इज कॉल्ड माय डेटर. ओके. नेक्स्ट वन इज बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल मैंने आपको समझाया था, आज फिर से एक बार समझा दे रही हूँ. यहाँ पे ध्यान से देखिए. ए हु इज अ सेलर एंड बी हु इज अ बायर. राइट. अकाउंट्स के टर्म में हम इसे सेलर और बायर नहीं कहते. अकाउंट्स के टर्म में हम ए को कहेंगे सप्लायर और बी को कहेंगे कस्टमर. राइट. तो ये सप्लायर और कस्टमर है. अब दोनों के पॉइंट से समझते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ. ए ने बी को गुड्स सेल किए, मतलब ए गुड्स दे रहा है बी को, तो बी को क्या देना चाहिए? कैश. अगर ए ने बी को गुड्स दिए और बी ने ए को कैश दे दिया, तो ये हमारी होती है कैश ट्रांजैक्शन, जो यही कंप्लीट हो गई. राइट. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर बी ने ए को कैश नहीं दिया होता, यहाँ पर कैश नहीं होता अगर, तो ये कहलाती हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन. और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ए लिखेगा एक बिल. राइट. किसके लिए? बी के लिए. राइट. तो ए बी को एक बिल देगा और वो बिल क्या कहलाएगा? वो बिल कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज. तो जब ए बी को बिल दे रहा है, तो बी के लिए क्या हुआ? ये बी के लिए बनेगा ये उसका बिल्स पेएबल. दैट मीन्स एक ऐसा बिल जिसके अगेंस्ट बी को पेमेंट करनी है. किसे? ए के. ए को. तो ए के लिए ये उसका है बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज ए को पेमेंट रिसीव होनी है, बी को पेमेंट करनी है, इसलिए ये बिल कहलाएगा उसके लिए बिल्स पेएबल. तो बिल्स रिसीवेबल की जब हम बात करते हैं, तो इट इज आवर एसेट, करंट एसेट, बिकॉज हमको उसके अगेंस्ट पैसे मिलने होते हैं. और बिल्स रिसीवेबल आपके लिए एसेट होता है, और बिल्स पेएबल ऑन द कॉन्ट्ररी इज योर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. क्यों? क्योंकि बी को पेमेंट करनी है ए को within the time period which is specified in the bill for the amount for which you have purchased the goods. Right. तो वो कितना भी गुड्स हो सकता है और कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, मगर वो टाइम पीरियड आप देखेंगे हमेशा एक साल के विदिन ही आएगा. राइट. तो ये हम जब बिल में डील कर रहे हैं, तो ए और बी जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से बंधे हैं, उसे कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज. क्योंकि ए को पेमेंट रिसीव होनी है, तो वो कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल, और बी को पेमेंट करनी है, तो बी के हाथ में जो बिल रहेगा उसे कहा जाएगा बिल्स पेएबल. यहाँ हम बात कर रहे हैं बिल्स रिसीवेबल की. सो दिस इज माय करंट एसेट. ओके. आई हैव जस्ट रिसीव्ड वन डाउट. लेट मी जस्ट गो थ्रू इट. ओके. आई एम जस्ट रीडिंग दिस डाउट. एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन टू दिस. ओके. सौरभ, आपका डाउट था, मैम इज प्रीपेड एक्सपेंसेस आल्सो इंक्लूडेड इन करंट एसेट. अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं. राइट. हम आएंगे अभी इसके ऊपर, डिस्कस करेंगे. लेट मी सॉल्व द अनदर डाउट फर्स्ट. मैम, व्हाट इफ समवन बॉट समथिंग ऑनलाइन, लेट्स से 200 पेयर ऑफ शूज, एंड इट कंटिन्यूज टू सेल इट ऑनलाइन, what will it still be called the stock even though he does not have it physically? Okay. आपने एक स्टॉक होता है जिसको आप फिजिकली मेंटेन करते हैं. फिजिकली मेंटेन करना मतलब आपने जो वो गुड्स थे वो लाकर अपने पास रख लिए हैं, और अब आप उसे सप्लाई कर रहे हैं जहां भी आपका कस्टमर उसको रिक्वायर कर रहा है.
दूसरा आप बात कर रहे हैं जो यहाँ पर, वो बात कर रहे हैं आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो ई कॉमर्स होता है, राइट। ई कॉमर्स के अंदर आपने गुड्स खरीद लिए, वो आपने फिजिकली नहीं खरीदे, आपने पेमेंट कर दी है, मतलब नाउ दोज गुड्स जो कि आपके अभी भी सेलर के पास रखे हुए हैं, मगर वो गुड्स के अगेंस्ट आपने पैसे पे कर दिए हैं, तो वो गुड्स की ओनरशिप किसकी है? वो आपकी है, बिकॉज आप पेमेंट रिलीज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आपके पास से जो भी आगे फर्दर ऑर्डर करेगा, जिसको आप वो गुड्स सप्लाई करने वाले हैं, तो ओनरशिप आपके पास है। अब आप सप्लाई करेंगे, सो हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी? यू आर एंटाइटल्ड, राइट। तो अभी भी ये जो 200 जो शूज खरीदे हैं आपने, पेयर ऑफ शूज खरीदे हैं, वो आप ही के स्टॉक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप ही की ओनरशिप है और आप ही को वो बेचना है। अगर उसमें से कुछ भी बचेगा तो वो आपके लिए आपका क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। मान लेते हैं 200 में से आपने 150 पेयर बेच दिए, 50 अभी भी बाकी हैं, तो 50 पेयर अभी आपके पास ही दिखेंगे आपके अकाउंट में। तो 50 पेयर का स्टॉक आपके अकाउंट में बिल्कुल अपीयर करेगा। सो इट विल बी स्टिल कॉल्ड योर स्टॉक, even if it is not physically present with you, but it is the ownership of that asset, it belongs to you. That is why we'll be calling it as the stock for which the ownership has already been procured by your organization. Okay, I hope this is clear. Next हम चलते हैं आगे, which is accrued income. Accrued income मैंने आपको पहले ही बता दिया था। accrued income means income which we have earned but we have not received it, right? तो अगर हमको जब तक वो receive नहीं होगी, वो मेरी कहलाएगी current asset, right? Next है prepaid expenses. That means expense which we have paid before the due date. तो अब ऐसा हम मान सकते हैं कि अभी मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, उसको पे करने की डेट है 10th of May, and if I'm paying it today, which is 2nd of May, तो इन 8 दिनों के लिए ये मेरा क्या कहलाएगा? prepaid asset, prepaid expense which is treated as current asset. सिर्फ 8 दिनों के लिए ये मेरा कहलाएगा मेरा asset, current asset. Okay, I hope these current assets are all clear to everybody. Next category of asset is fictitious asset. So what is fictitious asset, which is also called nominal assets? देखिए हमने बात की फिक्स एसेट्स के अंदर कि फिक्स एसेट्स को हम क्यों परचेज करते हैं? so as to increase our production, so as to perform the operation. That means we are trying to derive benefit out of it, right? करंट एसेट को हम क्यों परचेज करते हैं? so as to get it converted into cash and generate profit, right? अब हम बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की। तो फिक्टिशियस एसेट्स मतलब होते हैं वो एक्सपेंडिचर जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जो कि पहले किया, और जिसको रिकवर करने में ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा समय, विच इज मोर देन 1 ईयर। तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स आपके आते हैं अंडर द हेड फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज वन एग्जाम्पल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनकर की, मतलब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी, सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया है, उसको कहा जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड आर नॉट गोइंग टू बी रिकवर्ड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसको करने में आपको 1 साल से ज्यादा लगेगा। तो वो जो समय है जो 1 साल से ज्यादा लग रहा है आपको, तो जितना आप 1 साल में रिकवर कर लेते हैं उसको आप शो करेंगे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि पीएनएल अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट, व्हिच यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। तो आप ये समझिए कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर जब हम पीएनएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम मेंटेन करेंगे, तो जो भी हमारा एक्सपेंस है वो हमारा किस साइड शो किया जाएगा? डेबिट साइड पे। सो व्हाटएवर amount of expenditure which is getting recovered every year is going to be written off, और उसको हम डालेंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर, और जो बाकी बचेगा जो कि अभी भी रिकवर करना रहता है वो जाएगा हमारा असेट साइड पे अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर विद द नेम ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, राइट। तो ये जो बाकी एग्जांपल्स भी दिए मैंने वो उसी की जैसे है, विच इज अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब क्या होता है कि if you are planning to raise the funds through the general public, और आपको लगता है कि शायद पब्लिक आपके इशू को, जो आपके शेयर जो आपने मार्केट में निकाले हैं, उनको सब्सक्राइब नहीं करेगी पूरी तरीके से, और वो इशू आपका फेलियर हो जाएगा, उस केस में we hire a guarantor. So against that guarantee which underwriter is offering us, we will be paying him underwriting
commission, right? So this commission is an expense which is getting charged to us against that guarantee which he is taking. तो ये भी अमाउंट जो इतना आपका रिकवर हो जाएगा वो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, और जो भी रिकवर होना रह जाएगा वो जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड, राइट? एक और एग्जांपल लिया मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का, इसको भी ध्यान से देखिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ओके, मान लेते हैं कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रही है, मैंने एक सेलिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक एक्सपेंस किया व्हिच इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस। ओके, अब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो आप निकाल रहे हैं उसको आप क्यों कर रहे हैं? सो एज टू इंक्रीज एंड प्रमोट योर सेल्स। आप मान के चलते हैं कि मैंने 50,000 रुपए का अपना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया और मुझे उम्मीद थी कि 5 लाख रुपए की सेल्स बढ़ेगी इससे, राइट? इस साल, इस करंट ईयर में आपकी सिर्फ 1 लाख रुपए सेल्स बढ़ी, यानी कि आप मान के चलिए कि 50,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 लाख में, 5 लाख के हिसाब से मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालेंगे तो ऐसा होगा कि हर 10,000 के अगेंस्ट आपकी 1 लाख की सेल्स होनी चाहिए, राइट? तो अब आपकी इस साल अगर मेरी सिर्फ सेल्स 1 लाख रुपए ही बढ़ी है तो 10,000 रुपए राइट ऑफ हो जाएगा, राइट? तो जो 10,000 आपने राइट ऑफ किया वो आप कहाँ दिखाएंगे? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर। और जो बाकी 40,000 रुपए बचे हुए हैं अभी विच इज स्टिल due to give its benefit to the organization, it is going to be shown in the asset side of the balance sheet, right? तो ये हमारा concept हुआ अपना deferred revenue expenditure का. So this deferred revenue expenditure is also a kind of fictitious asset, right? I hope this is clear to all. Now we'll move on to the next concept, and that next concept is receipts, right? अभी मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहले यहाँ से पढ़ाऊंगी, फिर हम बुक से इनको रीड करेंगे. Anything which you are finding it a little confusing, please write your doubts in the chat box so that I can resolve them. And we are also going to discuss all these points very much in detail when we are going to do that book reading, right? So let's move on to the next concept for today, and that is assets. So assets says that, sorry, receipts is the next concept. So receipt says कि जब भी हमें कुछ receive होता है मतलब there is something which is resulting into inflow of cash, that is called our receipts, right? Receipts को हम income से नहीं compare कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो हमें receive हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि उससे हमको income derive हो, right? जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने goods बेचे, उससे मुझे, अब ये मैंने मार्कर लिया, फिर से इस मार्कर को लिया, इस मार्कर को बनाने में मेरी कॉस्ट लगी 10 रुपए की, इसको बेचा मैंने 12 रुपए का, तो 12 रुपए इज माय सेल्स प्रोसीड और द टर्नओवर और सेल्स, तो व्हिच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रिसीट, राइट? ये मेरी 12 रुपए रिसीट कहलाएगी. अब इनकम क्या है इसके अंदर से? इनकम इज 12 minus 10 which is 2 rupees. 2 rupees in my income. अगर मैं अब ये कहती कि ये 10 रुपए का बनाया है और 10 रुपए की चीज को मैंने बेचा 8 रुपए में, तो 8 रुपए के अंदर मेरी रिसीट कितनी हुई है? 8 रुपए की, राइट? इनकम कितनी है? नहीं है, लॉस है हमें यहाँ पर, और वो है -2 rupees. It means -2 is my loss, so there is no income in that case. So income और रिसीट का फर्क समझ लीजिए. इनकम और रिसीट का फर्क ये होता है कि रिसीट means we are talking about the total amount that we are receiving or the inflow which we are getting in cash, right? So there are two types of receipts that we have. One is, एक तो रिसीट के बारे में ये जान लेते हैं कि रिसीट इज ऑलवेज गोइंग टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, यानी कि हमारे, मैंने आपको बताया था कि आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ट्रायल बैलेंस के बाद आप बनाएंगे फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट्स के अंदर वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट? तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर जो भी आपके आइटम्स, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के लिए फिर से मैं आपको बताती हूँ कि रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and credit all incomes and gains. इसीलिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही अकाउंट के जो क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है वो आपका रिसीट्स होती हैं, राइट? तो वो रिसीट्स हम दिखाएंगे उनको, तो मतलब it is always going to be shown on the credit side of trading or P&L account. Second is it is also going to result in the inflow of funds. मतलब जब भी हमारे पास हम रिसीव करते हैं तो there is always an inflow, right? अब inflow may result into profit, inflow may not result into profit. That is a separate thing altogether. But it will result. Receipt will always result into inflow of fund. और मैं इसको receipt पढ़ रही हूँ. P is silent here.
राइट, इट इज नॉट रिसिप्ट, इट इज रिसीट। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास दो तरह के रिसीट्स होते हैं, वन इज कैपिटल रिसीट, द अदर वन इज रेवेन्यू रिसीट। ओके, कैपिटल रिसीट जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि हर वो चीज जो मेरे बैलेंस शीट से रिलेट करेगी उसे कहा जाएगा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट को जब आप पोस्ट करेंगे तो उसकी सारी पोस्टिंग आएगी आपकी बैलेंस शीट में। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर। ओके, सो फॉर दिस we'll see there are some examples that I have taken so as to make you understand the concept really well. The first one is sale proceed on sale of fixed asset. So जो भी आपके fixed assets हैं, जैसे land and building था, plant and machinery था, right, furniture था, कोई भी fixed asset जो आपके पास available है, जब आप उसे sell करते हैं तो जो sell करने से आपको पैसा मिलता है that is called capital receipt. जैसे मैं कहूँ कि 1 लाख की बिल्डिंग को मैंने 4 लाख में बेचा तो 4 लाख मेरा बना मेरी कैपिटल रिसीट, राइट। माइनस अभी नहीं करेंगे उसे कॉस्ट में से, बिकॉज जो माइनस की वैल्यू आएगी वो हमारी कहलाएगी गेन, राइट। तो यहाँ पर ही इसे छोड़ते हैं कि जो भी हमारे पास फिक्स एसेट को बेचने से जो पैसा आ रहा है दैट इज कॉल्ड माय कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट वन इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द प्रोप्राइटर और इन फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है ओनर की तरफ से, राइट। ओनर मतलब हम बात कर रहे हैं अभी सोल प्रोप्राइटर की, जैसे कि हमारे पास में देखिए ग्रोसरी शॉप है, वो सोल प्रोप्राइटर शॉप होती है, राइट। तो वो सोल प्रोप्राइटर यानी कि इंडिविजुअल ओनर है अगर वो, और वो कुछ भी पैसा लगा रहा है बिजनेस को चलाने में, तो वो उसकी कहलाती है कैपिटल, राइट। तो वो कैपिटल जो आपकी आई है बिजनेस में वो क्या है, लायबिलिटी है। इट इज टू बी शोन इन द लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल दिख रही है दैट इज कॉल्ड आवर कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट है हमारे पास which is capital contributed in form of shares or debentures. So shares or debentures का मतलब क्या हुआ, any amount that you are calling from the general public for the investment in the public in the form of shares or debentures. तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने पब्लिक से पैसा मंगवाया है and I have asked them, I have offered them that they'll be purchasing the shares of my organization, the ownership shares of my organization, तो वो उसके थ्रू भी तो पैसा आ रहा है, तो वो भी मेरा कैपिटल रिसीट बनता है। या फिर डिबेंचर, डिबेंचर जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, डिबेंचर मींस any security through which I am trying to raise the funds from the public or from any other institution by giving them the debentures of my organization, जिसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको इंटरेस्ट पे करेगी टाइमली, राइट। तो ये जो डिबेंचर है उसके थ्रू भी जो पैसा रेज कर रहे हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड आवर कैपिटल रिसीट, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पहले एग्जांपल में देखा कि अगर मेरे पास जो फिक्स एसेट है जो मेरी एसेट साइड पे दिख रहा था, अगर मैं उसे बेच रही हूँ तो एसेट साइड का बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो वो जो रिडक्शन आया पर जो आपको रिसीट हुआ दैट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। So reduction in the asset side of the balance sheet is called capital receipt in form of sale of the fixed asset, right? Secondly, if there is any addition on the liability side of the balance sheet, like in terms of inflow of capital or inflow of capital in terms of investment in shares, somebody investing in your organization shares or purchasing the debentures which are being issued by you, तो वो सब जो investments हो रही हैं वो कहलाती है आपकी inflow of funds, right? That is capital receipt. Next is loan from financial institution or NBFC. NBFC is non-banking financial companies. तो वो आप लोन लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, बट बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की ही। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आपने फंड्स रेज किए हैं थ्रू द बैंक इन फॉर्म ऑफ लोन, चाहे फिर वो बैंक से रेज किए हो या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रेज किए हो जो कि बैंक नहीं है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने फंड्स रेज किए AU फाइनेंशियल से, वो बैंक नहीं है, अब बन गया है बैंक, पर पहले बैंक नहीं था। या फिर कोई भी और मनी लेंडिंग डिपार्टमेंट से आपने फंड्स रेज किए, तो वो जो फंड्स रेज किए और आप लेकर आए हैं बिजनेस में सो दैट यू कैन यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग योर बिजनेस ऑपरेशंस is also to be treated as capital receipt. Okay, so all these three things are going to result into inflow of cash and they are going to affect your balance sheet, asset side and liability side, right? Okay, next is revenue receipt. Revenue receipt का मतलब क्या होता है, anything which we are receiving against the services which we are rendering, right? अब जैसे मैंने आपसे बात कही कि मैंने प्रोडक्ट बनाया
और उसे मार्केट में बेचा, या मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने परचेज किया प्रोडक्ट को और उसको मार्केट में बेच दिया, तो ये जो मेरी सेल वैल्यू है, जो मेरी टर्नओवर है, ये मेरी कहलाती है रेवेन्यू रिसीव, राइट। मतलब इससे मुझे रेवेन्यू जनरेट होता है, इसको हम अकाउंट्स की भाषा में रेवेन्यू भी कहते हैं। दैट मीन्स whatever money that I am generating by selling the product in which my organization is dealing in its day-to-day business course, it is called revenue, right? तो ये sale proceed of goods और सर्विसेज, यानी कि आप गुड्स या सर्विसेज जिसमें भी डील कर रहे हैं, जब आप उसको बेचते हैं तो जो पैसा आपको मिलता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड, राइट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं बाहर इन्वेस्ट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज अनदर टाइप ऑफ एसेट विच वी हैव। अगर आप उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ भी एडिशनल इनकम अर्न करते हैं तो दैट इनकम इज कॉल्ड इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड जो आपको रिसीव हुआ, ये आपकी कहलाएगी रेवेन्यू रिसीव। सिमिलरली कमीशन रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, यानी कि आपने कोई सर्विसेज दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिला है या कोई फीस मिली है, so they will also be treated as your revenue receipt। खास बात क्या है कि कैपिटल रिसीट को हमने शो किया बैलेंस शीट के एसेट एंड लायबिलिटी साइड में, और रेवेन्यू रिसीट्स आपकी शो होती हैं सारी की सारी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, राइट। तो कभी भी रेवेन्यू रिसीट को आपको पहचानना हो तो बहुत आसान तरीका है कि जो भी रेवेन्यू रिसीट्स होंगी वो हमेशा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ही रिफ्लेक्ट करेंगी, राइट। और उनका एक और तरीका ये होता है पहचानने का कि वो सारी इनकम जो आपको रिसीव हो रही है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है, राइट। और जब भी हम बात करेंगे कि हमने एसेट को बेचा, उससे हमको पैसे मिले, दैट इज कॉल्ड माय कैपिटल रिसीट। सिमिलरली आपने लोन लिया, कैपिटल रिसीट। आपने कैपिटल रेज किया, एडिशनल, कैपिटल रिसीट, राइट। सो एनीथिंग व्हिच इज अफेक्टिंग आवर बैलेंस शीट इज कॉल्ड आवर कैपिटल रिसीट, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स डू द लास्ट टॉपिक फॉर आवर डे व्हिच इज एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर मींस नाम ही बता रहा है खर्चा है। जैसे रिसीट था उसका उल्टा क्या होगा? खर्चा, आउटफ्लो ऑफ कैश, राइट। रिसीट में हमारे पास पैसा आ रहा था, एक्सपेंडिचर में पैसा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो एक्सपेंडिचर में हमारे पास पहला एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कॉमन अकाउंट्स की भाषा में एक्सपेंस भी कहते हैं, राइट। बट अगर हम उसके आगे वर्ड रेवेन्यू लगा देते हैं तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एनीथिंग, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है उसका। तो जो भी हम डेबिट साइड पे उसके लिखेंगे वो हमारा रिफ्लेक्ट करेगा हमारे एक्सपेंसेस। सो अब इस केस में आप समझिए कि जो भी एक्सपेंसेस आप ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख रहे हैं वो सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। दैट मींस वी राइट वेजेस, वी राइट सैलरी, वी राइट स्टेशनरी, we write office administration expenses, we write selling and distribution expenses, we write factory expenses. So any kind of expense that you are writing on the debit side of trading and P&L account is going to reflect your revenue expenditure. बहुत आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। जो भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल के आपने डेबिट में रिकॉर्ड किया उसे कहा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया आपने वो सब कहलाएगा रेवेन्यू रिसीट। क्लियर? ओके, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझने का एक और तरीका है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो हमने किए, जिसके अगेंस्ट हमने पेमेंट की है, जिसका बेनिफिट हमने इसी साल रियलाइज कर लिया। जैसे मैं कहूँ कि मैंने सैलरी दी एम्प्लॉय को, राइट, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी दी तो उससे काम कब लिया? इसी साल। तो जिस साल की आप सैलरी दे रहे हो उसी साल आपने उससे काम भी तो नहीं लिया, तो सर्विसेज तो आपको मिल गई। तो दैट मीन्स every payment that we are making for the services availed during this year, this current year, is called my revenue expenditure. अब जैसे मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो कंज्यूम की तभी तो बिल भरा, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, राइट। दूसरा एक्सपेंडिचर है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट क्या था? कैपिटल रिसीट था आपका जब हम बात करते हैं कि जब मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल करती हूँ तो जो पैसा आता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका उल्टा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच इज आल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग एक्सपेंडिचर, इसको कहा जाता है कैपिटल बजटिंग भी।
Capital budgeting is one important decision which is being taken by any organization, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिक्स एसेट जो आप परचेज कर रहे हैं उस पे जो आप पेमेंट करते हैं, जो परचेज प्राइस है आपकी पेमेंट कर रहे हैं, उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो दिस इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो लास्ट सेगमेंट है वो हम